لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے. Everyone, a warm welcome to all the notable, respected principal sir, seniors, teachers and my friends. Today is a bittersweet day as we all gathered here to celebrate the farewell ceremony of the 10th class of 2024. The moment is so emotional for all of us that it seems like only yesterday when we walked into our school. سامنے چاند سے خوب ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب. آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب شیخ احمد ضیاء صاحب، ریاست حکومت کی جانب سے ایوارڈ یافتہ اور علامہ اقبال ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری محفل میں تشریف فرمائے ہیں. ہمارے تعلیمی کمیٹی کے صدر جناب الحاج محمد نظام الدین صاحب اور ڈائس پر تشریف فرما معزز حاضرین اور 9th اور 10th کلاس کے پیرنٹس، عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی ہماری یہ تقریب ایک فیئرویل تقریب ہے، ایک وداعی تقریب ہے. یہ وداعی تقریب جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے اس اسکول سے ودا ہونے کے عوض میں جماعت نہم کے طلباء و طالبات اس تقریب کو کا انعقاد عمل میں لائے ہیں. یہ بہت خوش آئند بات ہے، یہ ایک بہترین عمل ہے کہ یہ ہر ایک کی ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنے کے برابر ہے. حاضرین، اس تقریب کو یہاں پر انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کرنا ہے اور ان کے آئندہ تعلیمی سال کے بارے میں انہیں مشورہ دینا ہے. اور الحمدللہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس مدرسے ہزا کے تعلیمی کمیٹی جو محتاج تعارف نہیں ہے، الحمدللہ سن 1995 میں اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا. اس تعلیمی کمیٹی کے صدر جناب الحاج محمد نظام الدین صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اس قدیم شہر کے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کو تعلیم سے آراستہ کریں. الحمدللہ ان کی نیک نیتی کے عوض میں آج الحمدللہ ہم 30 سال مکمل کر چکے ہیں. سن 1995 سے ہی اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور جماعت دہم تک، ابتدائی سے ہی جماعت دہم تک اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. الحمدللہ آج اس مدرسے کا 30واں بیچ الحمدللہ اپنے شان و آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے سفر کی طرف گامزن ہے. ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ یہ بچے یہاں پر الحمدللہ بہترین تعلیم حاصل کیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ تمام بچے 100% کامیاب ہو کر یہاں سے جائیں گے. الحمدللہ آج تک کے 30 سال کے دوران میں یہاں سے بہت سارے طلباء و طالبات فارغ التحصیل ہو کر پیشہ طب یعنی میڈیسنس میں، انجینئرنگ میں اور تعلیمی میدان میں کوئی ٹیچر کی حیثیت سے اور کوئی دیگر پروفیشنلز کی حیثیت سے اور بیرونی ممالک میں بھی الحمدللہ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے روٹی روزگار حاصل کرتے ہوئے اپنے والدین کا نام نہ صرف روشن کر رہے ہیں بلکہ اپنے شہر اور ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں الحمدللہ. حاضرین گرامی القدر، یہاں پر تعلیم و تدریس کا اس طرح انتظام ہے کہ بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. وہ تعلیم ہی کا جس میں تربیت نہ ہو. تعلیم تو بہت سے ادارے دے رہے ہیں لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. یہی
وجہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بچے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ بچے آگے چل کر الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نہ صرف اپنے خاندان اور کنبے کا نام روشن کریں گے بلکہ اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. تو حاضرین گرامی القدر، آج یہ تقریب ایک مختصر سی تقریب، ایک بدائی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ان بچوں کے جو مائیں اور پیرنٹس والدین جو بھی یہاں پر آئے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس تحریک میں، یہ جو تعلیمی تحریک ہے، اس کوشش میں انہوں نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیے ہیں، تعاون کیے ہیں، اور یہاں کے اس ادارے کی تعلیم کا کامیابی کا صحرا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے سر باندھنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی ہمت افزائی اور آپ لوگوں کی توجہ سے ہی ہم لوگ اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں اکثر و بیشتر محسوس کرتا ہوں کہ ان بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، ان بچوں کی تعلیم کی راہوں میں زیادہ تر خصوصی طور پر ماؤں کا بہت بڑا اس میں عمل دخل ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ماں بچے کی ابتدائی پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ مائیں جن کے بچے ایسا تعلیم آگے حاصل کر رہے ہیں، اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آگے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ان کا تعلیمی سفر کو جاری رکھیں. اور میں بچوں کے ماؤں سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے عزم مصمم کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف رجوع کریں. انہیں محسوس ہے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عورتیں ہیں، بلکہ ایک عورت اگر چاہے تو ایک یونیورسٹی بھی بنا سکتی ہے. ایک عورت اگر چاہے تو افلاطون اور زہرہ پروین جیسے بلند مقام تک بھی پہنچ سکتی ہے. ہمیں احساس کمتری میں آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. آپ ہی کی وجہ سے اس دنیا میں رونق ہے، آپ ہی کی وجہ سے. تو اسی طرح سے کسی شاعر نے یوں بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز طلب. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے تعلق سے، یعنی عورتوں کے تعلق سے یہاں تک بھی کہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ خوش قسمت ہیں مائیں جو اپنے بچوں کے تعلیمی سفر میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں. انہیں اپنے آپ کو فخر کے ساتھ رہنا چاہیے اور بچوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے. یقیناً آپ کا بہت بڑا مرتبہ رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابتدا ہی سے عورتوں کو کیا ہے احساس کمتری میں مبتلا کیا گیا ہے، اور مرد کو کیا ہے مرد کا تسلط رکھا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورتیں چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. عورتیں اگر چاہیں تو مرد کے خود ساختہ بنائے ہوئے بڑے بڑے محل کو مٹی کے تودے کی طرح گرا بھی سکتے ہیں. تو عورتوں کو بھی اپنے احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دینا چاہیے. میں ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں بہت کچھ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور جو بچے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں ان سے میری خواہش ہے کہ بچوں آگے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیے اور اپنے اخلاق کا دامن ساتھ رکھیے. اخلاق کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. اپنے اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے. اپنے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی عزت کرنا چاہیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی عزت کرنا چاہیے. آپ کی تعلیمی کیفیت کا اسی سے اندازہ ملتا ہے کہ آپ جتنا مؤدبانہ انداز میں رہیں گے اس طرح سے آپ کی تعلیم کا اندازہ معلوم ہوگا. آپ کے والدین کو بھی اس کی عزت ملیں گی. تو اس طرح سے اپنے اخلاق کا دامن ساتھ رکھنا چاہیے اور اپنے والدین کی قدر کرنا چاہیے. والد جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بلکہ ماں کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ماں کو اپنی چمڑی نکال کر جوتی بنا کر پہنا بھی دیں گے، بنا سکتے ایسا؟
हम अपनी चमड़ी निकाल कर जूती बनाकर माँ को पहना सकते, अगर ये भी काम अगर कर लेंगे तो माँ की एक दूध की धार की कीमत भी अदा नहीं हो सकेगी। इतना बड़ा माँओं का मर्तबा है। तो बच्चों अपने वालिदैन की कदर करना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। मैं तमाम हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी महफिल में यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं जनाब अलहाज मोहम्मद सैयद लियाकत हुसैन साहब अलमारूफ बाबा भाई से ख्वाहिश करता हूँ कि डेस्क पर तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर नशीन एजुकेशन सोसाइटी अलहाज निज़ामुद्दीन साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट जनाब मजीद साहब, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ीन, असातिज़ा किराम, पेरेंट्स, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, यकीनन आज का ये दिन इन तुलबा व तालिबात के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो इसलिए कि जो बच्चे जमात दहम में थे वो इस प्रेमिसेस से विदा हो रहे हैं और 9th क्लास के बच्चे उनके इस विदाई तकरीब को मुनक़िद करते हुए अपने खुलूस का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि मजीद साहब ने बताया कि इस इदारे को क़ायम हुए 30 साल हो गए। किसी भी तालीमी इदारे को 30 साल तक कामयाबी से हमकनार करते हुए बुलंदियों तक ले जाना ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं इंतज़ामिया को, खुसूसन सदर नशीन सोसाइटी को, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम असातिज़ा कराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन तमाम की खिदमत की वजह से ये मुमकिन हो सका। अल्लाह ताला से दुआ है तो इस इदारे को और मज़ीद कामयाबों से नवाजता रहे। आज की इस तकरीब की खुसूसी बात यह है कि प्रिंसिपल साहब ने इन 10th क्लास के बच्चों के वालिदैन को खुसूसी तौर पर वालदा यानी मदर्स को इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि चूँकि 10 साल तक ये जो बच्चे पाबंदी से स्कूल आए, तालीम हासिल किए और आज एक विदाई तौर पर यहाँ पर इस कैंपस को छोड़ रहे हैं, यकीनन इनमें इन माओं का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये लोगों की काविशें नहीं रहती तो इतनी टाइम की पाबंदी और बच्चों को जो है उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी निगाह रखना और अच्छी तालीम के लिए तवज्जो दिलाना, यकीनन मैं उन्हें, इन माओं को सलाम करता हूँ कि जो है जिन्होंने अपने बच्चों को, क्योंकि किसी ज़माने में जाना जाता था कि इलाक़ा तालीमी तौर पर पसमानदा है और दारुल उलूम और निज़ामिया का एक कंट्रीब्यूशन रहा कि इस पसमानदा इलाक़े को तालीमी उफ़क़ पर पहुँचाया गया और आज सारे ज़िले में बोधन की एक शनाख्त है और इन इदारों से फ़ारिग़ तुलबा व तालिबात अपना मुक़ाम बना रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के सिलेक्शन में हो या दीगर मैदानों में। यहाँ के हमारे ख़दीम शहर बोधन के बच्चे अपना मुक़ाम को बरकरार रखते हुए सारे ज़िले में अपनी शनाख्त बनाए। मैं मजीद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने प्रेमिसेस में अपने अचीवर्स का एक फ्लेक्सी लगाएं कि यहाँ पर तालीम हासिल किए हुए बच्चे जो भी अच्छे मुकाम पर हैं, ताकि दीगर बच्चों की हिम्मत अफजाई हो सके कि जो है यहाँ पर इस कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे आज अच्छे पोजीशन पर हैं। मैं 10th क्लास के बच्चों को एक मशवरा ये देना चाहूँगा कि नहीं है, ये आगाज़ मंजिल है। 10th क्लास को बिल्कुल जो है यानी एक बुनियाद है आगे के सफ़र के लिए। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्रॉप आउट्स बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। आप लोग ये हम पढ़ लिए 10th तक, अब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, ये कभी भी नहीं समझना, बल्कि ये सफ़र का आगाज़ है। यहाँ से फिर हमें प्लानिंग करना है कि हमको आगे चलकर क्या बनना है। आजकल गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी मौक़े पैदा हो गए। किसी ज़माने में
सारी रियासत में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज है। सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनको सही अंदाज़ा है कि उस वक्त तालीम का हुसूल बहुत मुश्किल था। आला तालीम का, प्रोफेशनल तालीम के लिए बहुत एड़ियाँ रगड़ना पड़ता था। आज ये तमाम इदारे तुम्हारे डोर स्टेप पे आए हुए, दहलीज पर आए हुए। तुमको क्या करना है, सिर्फ इरादा करना है। और मैं इन माओं को भी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें, खुसूसन बच्चियों को, कि अब क्या करना है तुमको पढ़ के, ये जहन में से निकाल दीजिए। आजकल डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना बहुत आसान हो गया, पहले के मुकाबले में बहुत आसान है। अगर आपके बच्चों में टैलेंट है तो बग़ैर किसी जो है प्रॉब्लम के वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे आला मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इनके ज़िंदगियों को ब्लॉक मत करो, इनको आगे पढ़ने दो। और जो है जहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं अपनी शनाख्त कायम रखते हुए आप लोग आगे बढ़ें, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मुझे एक तकलीफ़ ये भी हुई कि ये ब्लॉक से नुमाइंदगी नहीं हुई मजीद साहब। हमारे लड़के जो है गालिबन एहसास कमतरी में है। मुझे खुशी होती कि आप लोगों में से भी कोई एक बच्चा इजहार ख्याल करता। बच्चियाँ माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में अपना इजहार ख्याल किए। आप लोग भी जो है ये थोड़ा सा एहसास कमतरी है हमारे बच्चों में, इनमें टैलेंट है, इनके टैलेंट को बाहर निकालना है। और चूँकि मैं असातिज़ा से ख्वाहिश करूँगा कि जो है वो खुसूसन हमारे लेडी टीचर्स, मैं अक्सर जो है तालीमी इदारों को इंस्पेक्ट करता हूँ, लेडी टीचर्स का ज़्यादा तवज्जो लड़कियों की तरफ रहती। ये बच्चों को भी जो निकालो, क्योंकि ये लोग भी कौम के मेम्बर हैं। आगे चलकर इन्हें भी जो है कौम को लीड करना है और जो है सोसाइटी को लीड करना है। आप लोग, मैं बच्चों से मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी जो है आगे आएँ और जितना टैलेंट अपने अंदर, हर शख्स में अल्लाह ताला ने टैलेंट रखा, सिर्फ कोशिश ये होना कि जो है हम उसको एक्सपोजर देना, हम जो है आगे बढ़ना। और जहन में ये ख्याल नहीं आना कि जो है हम किसी से कम हैं। सुन रहे? और एक क्या है जो, और एक मेरा लास्ट मशवरा यह है कि जो है जो लोग माशी तौर पर कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को आगे तालीम जारी नहीं रख सकते समझ रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की जानिब से हमारे ज़िले में भी 28 जूनियर कॉलेज हैं टिमरीज़ के, जिसमें तमाम सहूलतें हासिल है, मुफ्त रहना, मुफ्त खाना, तमाम सहूलतें, अच्छी तालीम। वहाँ से भी गरीब यतीम बच्चे भी जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रहे, अच्छे IIT भी की तरफ भी बच्चे जा रहे। ये सहूलतें हैं तमाम। इन्हें अपनी शनाख्त मुस्लिम तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए वहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। जो लोग अपने बच्चों को जो है किसी वजह से दीगर इदारों में तालीम नहीं दिला सकते, उनके लिए उन इदारों के दरवाजे खुले हुए हैं। आप लोग अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी बच्चे भी, बच्चियाँ भी, गर्ल्स के लिए भी है कॉलेजेस, बॉयज़ के लिए भी। अगर इत्तेफाक से जो है आप लोग किसी रेप्यूटेड इदारे में दाखिला लेने के माशी वजह से कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर दाखिला लें, ताकि आपके बच्चों का मुस्तक़बिल संवर सके और ये आपका सहारा बन सके। मैं इतना कहते हुए ये 10th क्लास के बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपने इस बार जो इम्तिहान हुआ उसमें अच्छे से अच्छे निशानात के साथ कामयाबी हासिल करें और निज़ामिया के बच्चों को और बुलंद करें। मैं दुआगो हूँ कि इदारा यूँ ही तरक्की करता रहे। और ख़ुसूसी तौर पर फाइनली मैं तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की। ये जो बच्चे यहाँ पर आकर, एक ज़माने में बच्चे जो है इंटरमीडिएट के बच्चे भी डाइस पर आकर 2 लफ्ज़ बोलना बहुत मुश्किल महसूस करते थे, लेकिन यहाँ पर के अंदर जो कोई भी यहाँ पर लड़की बाहर नहीं जाती थी, ना कभी इस लड़कियों को मैं बगैर डिसिप्लिन के नहीं देखा हूँ। इसलिए मैं इनको दिल से दुआ करता हूँ। हर हमेशा मैं स्कूल के अंदर ये 10th क्लास के बच्चों को, ये नहीं जाते, सुबह 6 बजे आते थे, शाम के 8 बजे तक यहाँ पढ़ते थे लड़कियाँ बहुत डिसिप्लिन के साथ। तो मैं एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट हो दो, कुछ भी हो दो, मेरे तरफ से करता था मैं। लेकिन इस बच्चों को मैं दुआ देता हूँ जो डिसिप्लिन मेंटेन करें अपनी लाइफ में। आगे आप जाते हैं तो ऐसी डिसिप्लिन मेंटेन करें और छोटे बड़े का अदब करें। यहाँ के टीचर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ टीचर्स जो इनको टीचिंग करते थे टाइम पे,
और टीचर्स भी इनके ऊपर निगरानी रखना और मैनेजमेंट भी, हमारे मस्जिद साहब भी 9 बजे रात तक ये बच्चों के साथ रहना। मैं इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है, मैं इस अल्लाह से दुआ करता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाए और ये आगे जाके तरक्की करे। ये स्कूल के बच्चे आज एक जो कांस्टेबल बनी बच्ची सहारनपुर पे ड्यूटी है उसको कंडक्ट किए थे, वो बच्ची रामनवमी की बंदोबस्त के लिए नहीं आई। और एक लड़की जो डॉक्टर बनी यहाँ से, वो लड़की अचानक हैदराबाद चले गए उन्हें कुछ काम से, इसलिए स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चे आज बाहर है। एक रंजन वेस का बच्चा है, बहुत गरीब था बेचारा, उसको बहना थे पूरे 4, तो बच्चा आज वहाँ दुबई एयरपोर्ट पे सुपरवाइजर का काम कर रहा, बेचारे को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। ऐसे ऐसे हुदों में आज यहाँ के बच्चे तरक्की कर रहे हैं स्कूल के अंदर। और जो मैं हमारे निजाम भाई जो सोच के जो हमारे एरिया को रंजन वेस को कभी भी रिजेक्ट करते थे कि ये जाहिलों का एरिया, लेकिन माशाल्लाह आज हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, तालीम के अंदर किसी से कम नहीं है। हर जगह पे हमारे बच्चे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे, इस दुनिया के खाने से खाना लेके मिलके चल रहे हैं। उसके वजह से मैं हमारे मैनेजमेंट की, निज़ामिया मैनेजमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है। आज उस कंपटीशन से हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज में हमारे ओल्ड सिटी का बच्चा बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा है। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा काम है, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा फर्ज है, जिसे हम एक इंसान को काबिल बनाएं। और यहाँ पर तालीम के साथ, दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम दी जाती है। इसके वजह से ऐसे बच्चे ये यहाँ पर बड़े गोशा पाबंदी के साथ तालीम पढ़ते हैं। मैं इस मौका दिया गया इस मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दाई तकरीब प्रोग्राम में मुझको मदऊ करने, पावर न्यूज़ भारत को मदऊ करने का मैं स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले तो 10th क्लास के बच्चों को मैं एक बकौल शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी ज़िया साहब और स्कूल कमेटी के सदर साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ जो इस प्रोग्राम में शिरकत करे हैं, उनको मेरा सलाम और तमाम शुरा को मेरा सलाम पेश करता हूँ। और आज के इस तकरीब में जो तकरीब का इनेकाद किए हैं 9th क्लास के स्टूडेंट, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह के प्रोग्राम हमेशा हर स्कूल में होते हैं, लेकिन आज जो निज़ामिया स्कूल का प्रोग्राम मैं पहली बार फेयरवेल पार्टी में शिरकत कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मदऊ किया गया है। तो ये एक ख़ास बात है और अच्छी बात भी है कि पेरेंट्स को स्टूडेंट की क्वालिटी किस तरह से यहाँ पर तालीम दी जाती है वो बता रहे हैं। तो उनकी भी हिम्मत अफजाई की है, आने वाले और बैच के लिए भी हिम्मत अफजाई है। तो मैं काबिल मुबारकबाद है ये प्रोग्राम। और साथ ही साथ मैं टीचर्स को भी एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी जो मेहनतें हैं वो रंग लाएंगे इंशाअल्लाह। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 बाई 10 इस स्कूल में आएंगे। तो मैं हमेशा से इस स्कूल का वेल विशर हूँ, तो मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि स्कूल 10 बाई 10 आए। मैं अपनी बात एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम ना दो, मैं खुद मुकाम ले लूँगा। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, प्लीज़ टेक द Please present the file. Mohammad Hamiduddin Sahab, please present the file. Sana Patel Sahab, please present the file.